We are almost halfway through the Bible study. We thought of having 3 months Bible study. Now already 1.5 month is over. हम लोग अभी आधे रास्ते पर पहुंच गए हैं। 3 महीने का हम लोग का बाइबल स्टडी का ये प्लान है। प्रत्येक लोग 3-3 महीना लेंगे, तो अभी आधे पर हम लोग आके पहुंचे। So today we are skipping the question answer session because I am little sick. और आज क्वेश्चन और आंसर जो प्रश्न और उत्तर का जो सेशन हम लोग के बीच में होता है, उसको मैं आज के लिए टाल देता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बीमार भी हूँ। So I am straight away going into the study. और मैं सीधा अभ्यास के ओर जा रहा हूँ। Last week we saw from Genesis chapter 4. और गए हफ्ते में हम लोग उत्पत्ति के 4थे अध्याय में देखे थे। And initially in the first class we told that the entire Bible has 2 main subjects. और मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि सारा बाइबल में 2 सब्जेक्ट है, 2 विषय है। One is about our Lord Jesus Christ. एक हमारे प्रभु यीशु के बारे में है, And second is about how we should live our life. और हम लोग अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। So today also we will continue with the second topic, and next week, for the next 2 weeks or so, we will come back to the Christ again. और हम लोग अगले हफ्ते से हम लोग मसीह के ऊपर वापस आएंगे। So let's again come back to Genesis 4. और आइए हम लोग उत्पत्ति के 4थे अध्याय में आए। So I am going to ask one question. और मैं तुम लोग से एक सवाल करने वाला हूँ। Why does God delay in answer? क्यों परमेश्वर विलंब करता है, देर करता है जवाब देने में? Has anybody asked this question? क्या आप में से किसी ने ये सवाल पूछा है? Have you ever thought why is not God answering on time? और क्या आपने कभी ये सोचा है, आप ये सवाल आपके मन में आया, क्यों समय पर नहीं जवाब देते? Psalms 10:1, right? और भजन संहिता 10 का 1, Or God, why do you stand afar off, O Lord? और उसमें लिखा है कि ये परमेश्वर तो दूर क्यों रहता है? Why do you hide in times of troubles? और तू तकलीफ के समय में छुपता क्यों है? And similarly in Revelation, और इसी तरह प्रकटीकरण के पुस्तक में, even in heaven, और स्वर्ग में भी यही सवाल पूछा गया है। Revelation chapter 6 verse 10. और उत्पत्ति के 6 के 10 पे, Lord, how long? They are asking, the saints are asking, how long, O Lord, how long? ये कितना टाइम लगा रहे हो परमेश्वर, तुम इतना देर क्यों कर रहे हो? If there is any brother or sister who has never asked this question, probably you can leave now. Because this Bible study is for people who have asked that question. और अगर तुम्हें से कोई भी ऐसा एक व्यक्ति होगा कि जिसने ये सवाल नहीं पूछा हो, वो भला होगा उसने यहाँ से चले जाए, क्योंकि बाइबल कह रही है कि सब ये सवाल पूछ रहे हैं। Because my brothers and sisters, this question was there from the beginning, Adam and Eve. और ये पहले से ही ये सवाल ये था, आदम और हवा को जब बनाया तब से ये सवाल है। So we will look at 3 people in the Genesis, book of Genesis. और हम लोग केवल 3 लोगों को उत्पत्ति के पुस्तक में देखेंगे। And we will look at why we think that God is not answering on time. He is answering, but not on our time. और देखिए हम लोग ये सवाल को जांच पड़ताल करें कि क्यों परमेश्वर समय पर जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन समय पे क्यों नहीं दे रहा? See, first is Adam and Eve. देखो, सबसे प्रथम आदम और हवा। So we know that in Genesis chapter 3 verse 15, और हम लोग ये जानते हैं कि उत्पत्ति के 13 के 15 में God promised them, परमेश्वर ने उन्हें वादा किया, the seed of the woman shall crush the head of the seed of the serpent. और बीज ये औरत का स्त्री का वो कुचल देगा वो सांप का सर को। So they got the promise. और उन लोग को ये वादा मिल गया। So from that time onwards, they are looking for the promise to be fulfilled. और उसके बाद वो लोग वो इंतजार कर रहे हैं वो कब पूरा होगा। If you read Genesis chapter 4 verse 1, और आप उत्पत्ति के 4 के 1 को पढ़ोगे, you can see actually the hope of Eve when the firstborn was born. और जब वो देखिए वो हवा का आशा
जब उसका पहिलौठा पैदा हुआ। Read that, brother. पढ़ ली। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। So she was very happy. She had that hope. She thought that Cain was the one who was going to fulfill it. और वो इतनी खुश हो गई, वो ये सोचा, उसने उसको नाम भी रखा और ये कहा कि देखो मेरा आशा पूरा हो गया। But soon she realized that it is not so. और जब उसने बाद में उसको पता चला ये ऐसा नहीं है, Then she has names the second son as Abel. और उसने दूसरे बेटे का नाम आबेल रखा। It's verse 2. फिर उसने उसके भाई आबेल को भी जन्म दिया। So, Abel means vapor or breath. और आबेल का अर्थ है ये धुरी, यानी धुआं, जो थोड़ा ही समय के लिए दिखाई देता। See, Cain, she named that I got it from, I possessed from God. और देखिए मैं इसे अपने परमेश्वर से हासिल किया। Correct? सही। But Abel doesn't reflect that hope. और आबेल भी वो विश्वास का जवाब नहीं था। So she understood she has to wait. और वो जान लिया कि उसको इंतजार करना है। So that feeling that God is not answering when she wanted started from there. और ऐसी धारणाएं उत्पन्न हो गई, परमेश्वर समय पर जवाब नहीं देता, वहां से शुरुआत हो गई। That is there in the name itself. और वो उसके नाम से ही हमको पता चलता। And then when we come to later, they name the son as the Seth. और फिर आगे बढ़कर आगे चलकर हम आते हैं, फिर उनको एक बच्चा हुआ और एक वो उसका नाम वो लोग उसने सेत रखा। But by that time they had matured in the faith. और उस वक्त तक वो लोग अपने विश्वास में बहुत ही परिपक्व हो गए। Because then you see actually they have started seeing, if you look at the name, they have started seeing the salvation of the Lord, because by the name actually it's substitute. और इस नाम के जरिए एक सब्स्टिट्यूट हुआ है, वो नाम को वो स्थान मिला है कि आगे चलकर वो लोग ये हो जाएंगे। We are going to look at the reasons. First we are going to look at 3 people. Then we will look at the reasons why they felt or what was the reason for delay. और हम लोग उस कारण को भी देखते चले जाएंगे। First we are looking, first Adam and Eve. Second person was Abraham. और दूसरा आदमी जो था वो अब्राहम था। We all know the incident of Abraham, so I will just tell the verses and go fast. और मैं सब लोग जानते हैं अब्राहम के बारे में, तो मैं केवल कुछ पंक्तियां आपको सुनाऊंगा, वो देखते हम लोग आगे बढ़ेंगे। Genesis chapter 12. और उत्पत्ति के 12 In 2, God called Abraham and told that you shall live and I will bless you, I will make you a great nation. और उसने अब्राहम को दर्शन दिया और कहा कि मैं तुझे आशीषित करूंगा और तेरे जरिए एक बहुत बड़ा राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। But Abraham left everything. अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया। So if Abraham has to become a great nation, what is the first thing should happen? और अब्राहम एक बहुत बड़ा राष्ट्र बनना था, तो सबसे पहले क्या होना था? He should have a child, right? और उसको बच्चा होना है ना। Without that he cannot become a great nation. और उस बच्चे के सिवाय वो एक बहुत बड़ा राष्ट्र नहीं बन सकता था। Think about it. Abraham left everything. और इस बात के बारे में सोच लीजिए, अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया। But after 10 years also, nothing seems to be happening. और 10 साल के बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा है। So in Genesis chapter 15, when you come to Genesis chapter 15, और जब आप उत्पत्ति के 15वें अध्याय में आते हो, you will see actually Abraham is complaining. और तुम लोग देखोगे तो अब्राहम कंप्लेन कर रहा है। Abraham says to the Lord, Lord, Eliezer, my servant, he is going to inherit all those things. और वो कह रहा है मेरा एक विश्वासी सेवक है और मेरे मरने के बाद में मेरी जायदाद का मालिक वो बनने जा रहा है। He is still, because he cannot see even first response, first sign of the promise being fulfilled. और उसको कुछ भी दूर दूर तक उसको कुछ भी नजर नहीं आता है परमेश्वर का वादा के बारे में। And when you come to Genesis chapter 16, और जब आप 16वें अध्याय में तुम लोग आते हो, Abraham and Sarah plans how to fulfill this promise. और अब्राहम और सेरा योजना बनाते हैं
कि परमेश्वर को मदद करने के लिए, कैसे उसके वादा को पूरा करने के So we know that incident, it is Hagar. और हम लोग जानते हैं उसकी काम वाली जो है, उसका मिस्री काम वाली हागार, हाँ, And then Ismail was born. और हागार के ये होता है और ब्याह कराता है, उसको इस्माइल पैदा होता है। So Abraham thought it is now on track. अरे अब्राहम खुश हो गया, बोला चलो अभी हम लोग सही रास्ते पे आए। After 25 years, God comes to Abraham after he started the journey in Genesis chapter 17, and he said, I am going to fulfill. And Abraham said, no, my Lord, it's already done. You read Genesis chapter 17, verse 17 and 18. और देखो 17वीं अध्याय को पढ़ लिए। 17 and 17 and 18. तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी और क्या साला जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। 25 years he waited for it. अरे ये तो बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। 25 साल तक वो इंतजार करता रहा। उसका टाइम 75 साल का था, वो 100 के करीब पहुंचा तब उसको जवाब मिला। We will look at one more person, though we will not look deep into him. और एक आदमी के बारे में हम लोग देखेंगे, पर इतनी गहराई में नहीं जाएंगे। Genesis chapter 25, verse 20 and 21. It is about Isaac. और वो ईसाक के बारे में। और ईसा ने 40 वर्ष का होकर रिबक से जो पदरनाम के वासी अरामी बतूल के बेटी और अरामी लबान के बहन की विवाह कर लिया। Read, brother. ईसा की पत्नी बांस थी, इसलिए उसे उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी Enough. We think that Isaac prayed and God immediately answered, right? और हम लोग ऐसे सोच रहे हैं आइसक ने प्रार्थना की और परमेश्वर तुरंत उसकी प्रार्थना को जवाब दिया। No, my brothers, read 26 also, verse 26. और 26 भी पढ़ लीजिए। 25-26. हाँ। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोमाई का था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। What was the age of Isaac? और 60. When did he marry? वो कभी शादी किया उसने? 40. Right? We read it first. At the age of 40 he married. He got the child at the age of 60. So how many years he prayed? और प्रार्थना कितने साल तक किया? 20 साल तक। Immediately answered? क्या No. 20 years he prayed and then God answered. 20 साल प्रार्थना किया तब उसका जवाब मिला। And then if we look at final person, we will look him into also is Joseph. We know it. आप देखिए, फिर हम लोग एक फाइनल आदमी के पास देखेंगे आखिरी, वो है जोसेफ। We know the story of Joseph. और हम लोग जोसेफ के बारे में जानते हैं। Joseph had 2 dreams. और जोसेफ को 2 सपना गिरा थे। But after the dream, everything seems to be going wrong. और उसके सपने के उपरांत ऐसा लग रहा था कि सब कुछ गलत हो रहा है। Correct? After he got the dream, he became a slave. और उसको सपना मिला और सपने के बाद में वो गुलाम बना। And then after he became a slave, then he was thrown into prison. और गुलाम बनने के बाद में उसको जेल में डाला गया। So Joseph, and then when he explained the dream to 2 people, they forgot, one person forgot about him. और जब उसके 2 लोगों को उसके सपने का उसने ये दिया, उत्तर दिया, उसने वो लोग को सपना गिरा था और उसको इंटरप्रेट किया उस सपना को, और वो लोग दोनों जन सपना का इंटरप्रेट करके गए, वो लोग भी भूल गए। He again was in prison for 2 full years. और वो जेल में ही लगातार था 2 संपूर्ण वर्ष तक। So nothing seems to be happening on time, at least from our perspective. कुछ भी चीज समय पर नहीं होते दिखाई दे रही। So why does it happen? ये क्यों हो रहा है ऐसा? That is what we want to know.
और ये बातें हम लोग को जानना जरूरी है। So from Genesis, we will get some lessons. There are many lessons. From Genesis, we will understand some reasons why God does this way. और ये उत्पत्ति के पुस्तक के जरिए हम लोग को ये पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। First reason, let us look about Adam and Eve, which we all know. और पहला कारण जो है आदम और हव्वा का, हम लोग सब लोग जानते हैं। When God promised Adam and Eve the seed of woman, what was he referring to? और देखिए, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को वादा किया कि ये स्त्री का बीज इस सर्प का सर कुचलेगा, वो किसके बारे में कह रहा था? Now we know that it is about Jesus Christ. और अब हम लोग को पता चल गया यीशु के बारे में कह रहा है। But we know that it is about God himself becoming man. और हम लोग ये जानते हैं परमेश्वर खुद ही मनुष्य बन रहा। But did Eve realize that? क्या उसको ये बात समझ में आई? He would not have realized it completely. वो लोग को समझ में नहीं आई। What God promised to Eve was much bigger than what Adam and Eve think about. और जो वादा हवा से किया इतना बड़ा था, आदम और हवा को सोच के पड़े थे। They could have never imagined that the eternal God who created everything will become one of their descendants. और उनको ये नहीं पता था कि अनंत परमेश्वर जिन्होंने सबको सिरजा, सबको बनाया है, वो ही उसका कोख से आएगा और मनुष्य रूप धारण करे। 6,000 years after we know it, but they would not have known it clearly. 6,000 7,000 साल के बाद में हम लोग को ये बात का पता चला है, लेकिन उसको पता नहीं था। If Eve meets our Lord, if Eve meets our Lord, then Eve meets our Lord. और तो जब हवा हमारे प्रभु से मुलाकात करेगी, She would be surprised. उसको तो बहुत आश्चर्य जनक हो जाएगा। She would be very happy. She would think that Lord, you created us. Did you really tell me that you will become my descendant? और वो कहेगा, प्रभु यीशु को देखकर बोलेगा, प्रभु तूने हमको बनाया और तू ही हमारा इससे पीढ़ी से पैदा हुआ। Then she will say to the Lord, I am thinking, she will say to the Lord, it is worth waiting 10,000 years for you. और वो कहेगी कि ये तो योग्य होगा, 10,000 साल हम तेरे लिए इंतजार करें। First problem with us, my brothers and sisters, we have never understood what really God promised us. और सबसे प्रथम हम लोग को समझ में नहीं आती है कि परमेश्वर हमको क्या कह रहा है। We think about small things, और हम लोग छोटी छोटी बातों को देखते हैं, but what He has meant for us is much bigger, and when we receive it, we will know that whatever we have waited was more than worth waiting. और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि अगर हम धीरज से उसका इंतजार करेंगे, क्योंकि हमारा प्रतिफल जो है वो बहुत ही बड़ा है। 1 John chapter 3 verse 2, read it. पहला यूहन्ना 3 verse 2. 3 verse 2. हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। So we are not fully understood what we will be. We only know that when we will be like Him. But what that is, we are not fully understood. और हम लोग भी ये अब तक हमारे समझ में नहीं आया, हमारे चित्त के नीचे उतरा नहीं है कि हमारा प्रतिफल क्या है और हम कैसे होने वाले हैं। All the struggles that we are going through, when we reach that goal, we will say all these things were small things. और जब जो तकलीफ से, मुसीबत से, संकट से और जो संघर्ष से हम होकर गुजरते हैं, वो जब हम लोग वहां पर पहुंचेंगे, हमारा प्रतिफल जब हमको देखेंगे, तो हम लोग ये कहेंगे कि जो हमारा संघर्ष था वो कुछ भी नहीं। Second reason is, दूसरी कारण है, when we come to Abraham, और जब हम अब्राहम के पास जाते हैं, see Abraham waited for 25 years. अब्राहम 25 साल तक इंतजार किया, But Abraham and Sarah's life, और अब्राहम और सारा का जीवन, it is still continuing as a great example. उसका जीवन हमारे लिए एक बहुत बड़ा
Let us read one verse. Isaiah chapter 51 verse 1 to 3. यशाया This is about Abraham and Sarah. नबी की पुस्तक 51 Verse 1 to 3. 1 से 3 देखिए वर्ष 1 to 3. हे धर्म पर चलने वाले, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो, जब वह अकेला था। So these are group of people who wants to put their trust in the Lord. They want to seek righteousness. They are believers. But when they see all around destruction, they are little doubtful. They are little shaken. एक ऐसा जन समूह है जो विश्वास करते हैं और आशा रखते हैं वो धार्मिकता के बारे में जो परमेश्वर उनके ऊपर देने वाला है, लेकिन उनको वो नजर नहीं आता है। So that is what it says. You will seek righteousness. You will seek Lord. Now they are little troubled. But how does the Lord encourage them? और इसीलिए कह रहा है ना, तुम लोग जो धार्मिकता को तलाशने वाले लोग हो, तुम लोग को बारे में वो रेफरेंस देता है। So then Lord says, look to Abraham and Sarah. और वो परमेश्वर कह रहा है अब्राहम की तरफ देखो और सारा की तरफ। Sarah was almost like a dead person. और सारा तो उसकी बांझ हो चुकी थी, एकदम ये हो गई। See, the Bible is comparing her with a pit. It's like a tomb. और उसकी को कह रहा है कि वो एक कब्र का जैसा है। That is what it said. Look at from the pit that you are taken. और वो बोलता है वो कब्र में से, वो खड्डे में से, उसमें से तुमको निकाला गया। Nothing would have come out of it. और कुछ भी तो आने वाला नहीं था। But the Lord brought you all out of it. आज परमेश्वर ने तुमको उसमें से निकाल कर लेके आया। When Israel thinks about Abraham and Sarah, इज़राइल जब अब्राहम और सारा के बारे में सोचते हैं, whatever the trouble is, they know that the Lord will revive us. और क्या भी तकलीफ होने दो, वो लोग बराबर पक्का विश्वास हो गया परमेश्वर हमको उसमें से निकाले। Is there anything impossible for God? क्या कुछ भी असंभव है परमेश्वर की? Look at Abraham and Sarah. आप अब्राहम और सारा की तरफ देख। My brothers and sisters, sometimes we have to wait because God is going to use us as an encouragement for others. और प्रिय जनों, तुम लोग ये धीरज रखो, क्योंकि तुम्हारा धीरज के जरिए तुमको परमेश्वर ऐसा उपयोग करेगा कि तुम लोग बहुत आशीष के कारण बनो। Abraham and Sarah would not have realized that in their life. अब्राहम और सारा को ये पता नहीं चला होगा। They would have realized when in heaven, when they see their children going and saying, Abraham and Father Abraham and Sarah, we were in trouble. But then when we thought about you, we got encouraged. और जब वो लोग देखेंगे और कहेंगे कि Then they would have in the heaven. हाँ, वो स्वर्ग में पहुंचेंगे और जब वो लोग देखेंगे इतने बेशुमार लोगों को, तब वो लोग कहेंगे, आश्चर्य से भरकर कहेंगे, ये परमेश्वर तूने कमाल कर। So then they will realize 25 years was nothing. और वो टाइम वो लोग को ये सोचेंगे, अरे 25 साल What the great blessing for many generations. What was 25 years? और पीढ़ी दर पीढ़ी, वंश दर वंश का आशीष हमको मिलना हुआ है, तो ये क्या है बोल के थोड़ा सा। It's not delay, brothers. It is actually worth waiting. और ये डिले नहीं है, ये हमारे लिए योग्य है ताकि हम इंतजार करें दुख तकलीफ। See, even in Hebrews we are encouraged by Abraham and Sarah. Hebrews chapter 11, verse 11 and 12. और इब्रानी के पुस्तक चैप्टर 11, verse 11 and 12. विश्वास से सारा ने अब बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ था, आकाश के तारों और समुद्र के जीव के बालू के समान, One man and him as good as dead. और देखिए, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था। Is there any situation in your life which is worse than this? और क्या तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई सिचुएशन है, स्थिति है जो इससे खराब हो सकती? So first reason is
that we would not have understood it fully actually what the Lord said, the great blessing that He has. एक तो कारण ये हो सकता है हम लोग को समझ में नहीं आया अभी तक Second, परमेश्वर का हमारे लिए जो योजना। second reason is God is shaping us so that we will be a great example to others. और दूसरा कारण है परमेश्वर हमको आकार दे रहा है, हमको शेप दे रहा है कि हम लोग दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। And third reason, Babu had already told it in the morning, but I will say it from the life of Joseph. और अब तीसरे कारण भाई बाबू ने सुबह हमसे ऑलरेडी बात कर चुका है, लेकिन मैं जोसेफ के जीवन से बताऊं। Genesis chapter 41 verse 32. Read that first. जेनेसिस चैप्टर 41 verse 32. और फेरो ने जो यह सपना 2 बार देखा है, उसका भेद यह है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है। Enough, brother. So Joseph is telling very clearly to Pharaoh, you have seen the dream twice, and the reason is what has established it will not change. How does Joseph know that? और जोसेफ का जो फारो का जो सपना गिरा था और जोसेफ ने उसको इंटरप्रेट करके बताया और वो सपने के बारे में उसको दो प्रकार का सपना गिरा था। तो ये जोसेफ को कैसे पता चल गया? Joseph says, you have seen it twice, no? That means it is established, it will not change. How did Joseph know that? और जब उसने 2 बार वो सपने को देखा तो उसको पक्का विश्वास हो गया और वो बोला कि ये स्थापित हो चुका है, अब कोई बदलाव नहीं आने वाला है। There is only one person before Pharaoh who has seen dream twice. Who was it? और एक आदमी का जो फारो के सामने था उसने 2 बार सपना देखा और वो कौन था? Who was it before Pharaoh? He saw the dream twice. फारो के सामने वो आदमी है जिसने सपना 2 बार देखा। Does Joseph, right? जोसेफ through his life, he knew that God had given him dream twice. Now he is at the palace of Pharaoh. He knows that it is almost getting fulfilled. Now he is encouraging Pharaoh. You have also seen the dream twice, no? And I know it for sure that it is established. जोसेफ को भी सपना गिरा था, 2 बार गिरा था, जो बातें उसका दर्शन में आई थी। और अब फारो को भी सपना गिरा, वो भी 2 बार गिरा। तो जोसेफ को ये बात का पक्का हो गया, बड़े एकदम डर हो गया कि फारो का जो सपना गिरा है वो पक्का है, वो स्थापित हो चुका है, अभी कोई बदलाव आने वाला। So if you tell to Joseph, no, it is not clear, it is not sure, what will Joseph tell to you? आज जोसेफ को कहेगा कि बाबा जोसेफ तुम्हारा सपना जो है, मेरे को जो पढ़ा हुआ सपना तुमने जो इंटरप्रेट किया है वो बराबर नहीं है। तो जोसेफ क्या कहेगा? Joseph will say, no, see, my brothers tried to finish off my dreams. They sold me as a slave. I was into prison, but the Lord saw it twice, and now see it is fulfilled. और देखिए वो बोलेगा कि मेरे भाइयों लोगों ने मेरे साथ द्वेष किया, मेरी हत्या करने की प्रयत्न किया और उसके बाद हत्या वो लोग नहीं कर सके तो वो लोग ने मेरे को गुलाम बना के मिस्रियों के हाथ भेजा। मैं गया, इस सारे दौर से गुजरते हुए मैंने 2 बार सपना देखा और अब मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। तो ये सफलता जो मुझे मिली है वही सफलता तुझको भी मिलेगी। So when you go through this experience, you become strong in faith and you encourage others in faith, right? और जब तुम इस दौर से होकर गुजर रहे हो तो तुम मजबूत होते जाओगे और तुम भी दूसरों के लिए एक चैलेंज बनोगे, एक उदाहरण बनोगे। And Joseph, one more thing, in the faith itself, we will see Genesis chapter 50, और उत्पत्ति के 50वें अध्याय में verse 25. 25वीं पंक्ति। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। Joseph is very sure, correct? Joseph is saying 100% God will visit you and take you, and when you go, remember to take my bonds also. अरे लगभग 400 साल है वो बोल रहा है उसके भाइयों को, मैं जब मरूंगा तो
तो मेरे को इधर दफना देना और मेरी हड्डियों को, है ना, जब कनान देश में तुम लोग चले जाओगे वो टाइम पे मेरी हड्डियों को साथ में लेके जाना। How can Joseph have such faith? और कैसे यूसुफ को ये विश्वास होगा कि मेरी हड्डियों को लेके जा बोल के 400 साल पहले उसने कहा, 400 ईयर। Yeah, 400 years. हाँ, 400 साल। How come? And we know that in Exodus chapter 13, Moses took the bones. और हम लोग ये निर्गमन के पुस्तक 400 साल के बाद मूसा आ गया, वो टाइम पे मूसा ने उसकी हड्डियों को लेकर गए। Because Joseph waited and underwent all the sufferings as the Bible said it in the morning, his faith was very firm. Nothing can shake him now. और जैसे बाबू अंकल ने सुबह को बोला है कि उसका जो विश्वास जो था बहुत ही मजबूत था। So first reason is that we may not have understood the promise completely. पहला कारण हम लोग ने उसके वादे को बराबर नहीं समझा है। Second reason is that God is shaping us to be a blessing to others. और दूसरा कारण परमेश्वर हमको आकार दे रहा है कि हम लोग दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, Which we may not know, which we will realize only when we are in eternity. और हम लोग को ये पता नहीं होगा, हम लोग को तब पता चल जाएगा जब हम अनंत काल में हैं। And third reason is he is strengthening our faith also. और तीसरा कारण ये है कि वो हमारा विश्वास को भी मजबूत कर रहा है। And fourth reason, और चौथा कारण you think about it. आप सोच लीजिए। See, last week we discussed about how Joseph reconciled with his family. और गए हफ्ते में हम लोग ने ये देखा कि उसने कैसे अपने परिवार के साथ मेल मिलाप कराया, सुलह कराया। Correct? And Judah was the key person. और यहूदा एक खास मुख्य कारण था। Correct? Judah was the person who, we know that Judah was the first brother who said, let us kill him. और जूदा वो था कि पहले उसने कहा था कि हम लोग उसको मार डालते हैं। Judah was the villain there, correct? He is the chief of the sinners there. और जूदा एक्चुअली विलन था और वो मुख्य गुनहगार था। But later, we see him as the chief of the saints. और वो दूसरी बार हम लोग उसको देख रहे हैं कि वो मुखिया बन गया विश्वासियों का। Because he is saying, no, I will be instead of my brother Benjamin, let me be here and let my brother Benjamin go. और वो जब लेता है, जिम्मेदारी लेता है, मैं बेंजामिन की जगह लेता हूँ, स्थान लेता हूँ, बेंजामिन को जाने दो, मुझे रख लीजिए। So that gave such a joy to Joseph. और वो ऐसा आनंद जोसेफ को दिया। Correct? सही। Any other brother saying that would not have given him that much joy. और कोई और भाई अगर ये कहेगा तो इतनी खुशी यूसुफ को नहीं होगी। Joseph knows that it is the brother Judah who initiated it. और जोसेफ को पता था कि यही भाई यहूदा मेरे खिलाफ उसने ये मुहिम चलाई। And the same brother turning completely upside down, completely changing, would have made Joseph very happy. My brother is totally changed. और देखिए यही भाई में इतना परिवर्तन आ गया तो ये आनंद, ये खुशी उसको मिल गई। Joseph's joy was complete. और यूसुफ का आनंद पूर्ण हो गया। If it had happened before Judah would have turned, that joy would not have been complete, right? और अगर ये जो जुदा में परिवर्तन नहीं आता तो कोई ये आनंद में पूर्णता प्राप्त नहीं होती। That problem would have still been there, right? और वो प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती। So God waited so that Joseph's joy will be complete. और परमेश्वर ने इंतजार किया कि जोसेफ का जो खुशी जो है वो पूर्ण हो जाए। So God is not delaying, my brothers. आप प्रिय जनों, परमेश्वर कभी विलंब नहीं करता, देर नहीं करता। It is for our good. और वो हमारे भला के लिए। It might be 25 years like Abraham, और ये हो सकता है 25 साल अब्राहम के, or it is like 20 years like Isaac, और ये हो सकता है 20 साल इसहाक के, or it might be 17 or 25 years like Joseph, और 17 से 18 या 25 साल यूसुफ के, or it might be even 4,000 years like Hawa. और 4000 साल हवा के ले लो। But when we get what he promised, then we will realize that whatever he promised was worth the waiting. और हम लोग को जब ये पता चल जाएगा कि उसका वादा जब पूरा होगा, कितना भी देर क्यों ना हो,
तो हमारा आनंद भरपूर हो जाए। As I said very briefly, because of the illness, I am completing it. But this is the key from Genesis. God is not delaying. Though we, like psalmists, might pray that God, why are you far off? Why are you delaying? God is actually not delaying. God is working for the best of us. और परमेश्वर कभी विलंब नहीं करता है। जैसे भजन संहिता का लेखक रोता है, परमेश्वर तुम कहाँ हो, तुम सुनते क्यों नहीं। जैसे हमारे दिल की पुकार होती है, अरे कहाँ है परमेश्वर, दिखाई नहीं दे रहा, कुछ जवाब नहीं दे रहा, हम लोग हताश हो जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, परमेश्वर का टाइमिंग और हमारा टाइमिंग में बहुत फर्क है। 100% all the promises in the Bible will be fulfilled perfectly and to the more than what we imagine. और मुझे 100% पता है कि जितनी भी वादे बाइबल में किए गए हैं वो बहुत कुछ पूरे हुए हैं और बाकी के भी पूरे होने जा रहे हैं। और ये बात को मुझे 100% मुझे गारंटी है। And as Uncle said in the morning, until then, let us be patient like a farmer. और जैसे बाबू अंकल ने बोला है कि हम लोग धीरज रखें, जैसे किसान अपने मेहनत का, मजदूरी का, फल का इंतजार करता है। One key thing to remember is never give up. और एक मुख्य कारण आप याद रखना, कभी भी हताश नहीं होना, कभी भी हारना नहीं, Never give up on in praying. और कभी भी हताश नहीं होना, और कभी भी प्रार्थना जो है वो त्यागना नहीं। Continue to pray even if it is 10 years, 15 years, 20 years, 25 years, 50 years. Remember, Abraham and Sarah would have married, if they would have married at the age of 30 and 25, they would have waited almost for 70 years. कितने भी साल लगे, देर बहुत दिख रही है, लेकिन उसके घर में अंधेर नहीं है। प्रार्थना किए जाना, प्रार्थना में दृढ़ हो। God is able to fulfill the promises that He has. और परमेश्वर को सामर्थ है उस प्रार्थना का जवाब देने का। That is what Genesis teaches.